Hey guys, good morning. Today we will learn about the Rutherford model. Let us see, Rutherford model is basically based on the Rutherford alpha particles scattering experiment. And what is alpha particle scattering experiment? See, basically Rutherford take a gold foil having thickness 1000 atom. He wanted to see the interaction of alpha particles with atom. So he took the gold foil having thickness of 1000 atom. Basically how much atom? It have thickness of 1000 atom. मतलब this is the gold foil thick और इसकी जो thickness थी, that thickness is about 1000 atom. And he passes the alpha particles through that gold foil. Alpha particles mean basically you know that helium. Okay, helium के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन. If you remove all those electron of helium, you remove both the electron of helium, what will happen? It will acquire +2 charge and it have mass 4. This is called alpha particles. Correct? It have very high energy and velocity. So what he did, he passes the alpha particles, he passed the alpha particles through the gold foil. Okay, and see what he assumed. He assumed that since atom is made up of the positive charge, then gold alpha particles is also positive and heavier charge, so it will show a slight deflection when it passes through the gold foil. Okay, means gold foil slightly deflect the alpha particles. Okay, to see the deflection, he covered the gold foil with fluorescent screen. You can see this is the fluorescent screen. So it covered the gold foil with fluorescent screen and fluorescent screen to observe the deflection. Clear? It's okay. तो क्या क्या उन्होंने कि गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल को अल्फा पार्टिकल्स, गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्ड कराया, मतलब अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल से पास कराया. और डिफ्लेक्शन को देखने के लिए उन्होंने क्या किया है, उसके अराउंड एक स्क्रीन रखा. स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन. आपको बताया व्हाट इज फ्लोरोसेंट स्क्रीन? दो स्क्रीन्स विच गिव स्पार्क और गिव अ ब्राइट स्पॉट आफ्टर कोलिजन विद अ पार्टिकल्स. करेक्ट, आपको पहले ही बता रखा हूं. तो अल्फा पार्टिकल्स, जो अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से पास करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन देखने के लिए उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन का यूज किया. इज करेक्ट? ओके, नाउ सी व्हाट हैपन, व्हाट यू ऑब्जर्व. यू सी दैट देयर आर basically what he is expecting. He expect that there should be slight deflection, but along with the slight deflection there are two additional things. One is the maximum particles go straight without any deflection. Maximum particles passes without any deflection, and some of the particles have heavier deflection. What he did not expect. What he expect that all the alpha particles will have a slight deflection, but here he see that maximum particles is passing undeflected, and some of the alpha particles have very higher deflection. Is it correct? Now see, this is the 2D representation. What is this? Is the gold foil. This is the radioactive substance, means alpha particles, source of alpha particles. When it passes, there are three type of rays: A, B and C. A is the ray which pass undeflected, B which have slight deflection, and C which have higher deflection. Okay, now see this is the thin plate of gold. Since this is a thin plate of gold, so what is happening? Three rays, one is passing straight, one have slight deflection, one have higher deflection. तो basically जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पास किससे हो रहे थे? एटम से ही पास कर रहे हैं, बिकॉज गोल्ड फॉइल इज मेड अप ऑफ एटम. तो सारे के सारे पार्टिकल्स सारे के सारे जो अल्फा पार्टिकल्स पास हो रहे हैं वो किससे पास हो रहे हैं? एटम से पास हो रहे हैं. इज इट करेक्ट? तो जो ऑब्जर्वेशन ये था वो बेसिकली किसका ऑब्जर्वेशन है? दैट इज द ऑब्जर्वेशन थ्रू एटम. इज इट करेक्ट? नाउ सी दिस, वी कैन से ऑब्जर्वेशन थ्रू एटम. तो व्हाट इज हैपनिंग? मैक्सिमम
particles is going straight or undeflected. Few of them have slight deflection and very few have large deflection. बेसिकली कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो सेम पाथ पे रिटर्न हो रहे थे. क्लियर है? अप्रोक्सीमेटली 12,000 में एक पार्टिकल्स ऐसा ऑब्जर्व हो रहा था जो सेम पाथ पे रिटर्न हो जा रहे थे. तो बेसिकली उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही हैड 3 ऑब्जर्वेशन. what was the observation? See, he have 3 observation. The first observation was the most of the alpha particle passed through the gold foil undeflected. You can see most of the alpha particles passed undeflected. Clear है? What was the second observation? Some of the alpha particles were deflected by a small angle. Yes, very few are deflected by a small angle. And the last one, a few particles either deflected by a very large angle or were actually reflected by along the path. See this one, it have large deflection and very few have returned back on the same path. Is it correct? Means it have 3 observation. These are the 3 observation of Rutherford alpha particle scattering experiment. Is it okay? Now pause your video and think what should be the structure of atom on the basis of this observation, or what you conclude. What will you conclude about the structure of atom on the basis of these 3 observation? Now come to the observation conclusion. What he conclude? He conclude, since number of alpha particles is passing straight or undeflected, it means most of the space of the atom is empty. Most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle passes through the gold foil without getting deflected. Correct? ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? अनडिफ्लेक्टेड पास किए हैं. अनडिफ्लेक्टेड कब पास करेगा? जब उसके पास कोई ऑब्स्ट्रिकल नहीं होगा. मतलब इसका मतलब क्या? एटम का जो स्पेस है, एटम में जो है ज्यादातर स्पेस क्या है? एम्प्टी है, खाली है, वहाँ कुछ नहीं है. इसीलिए वो स्ट्रेट पास कर जा रहे हैं या अनडिफ्लेक्टेड पास कर जा रहे हैं. Very few particles were deflected from their path, indicate that positive charge of atom occupy very little space. Means उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स फ्यू डिफ्लेक्शन पे कुछ पार्टिकल्स पास कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? अगर थॉमसन मॉडल के अनुसार प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो सभी को लिटिल डिफ्लेक्शन से पास करना चाहिए. मगर क्या हो रहा है? कुछ लिटिल डिफ्लेक्शन से पास कर रहे हैं और ज़्यादातर स्ट्रेट जा रहा है. इसका मतलब क्या है कि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं एक जगह पे कंसंट्रेटेड है या एक छोटे से वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है. करेक्ट? नाउ द third conclusion, a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree. Indicate means higher deflection. So very few particles have higher deflection or it reflected by at angle of 180 degree. It's mean कि जो वो पॉजिटिव चार्ज थे, किसी एक जगह पे जो पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड थे, इसका मतलब क्या है? दिस इज कॉन्फाइंड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, देन ओनली इट विल शो स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन. क्लियर है? अगर काफ़ी कंसंट्रेटेड होंगे तभी वो इतना स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन दे पा रहे होंगे. अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो क्या होता? लिटिल डिफ्लेक्शन देता. क्लियर है? तो ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन व्हाट ही कंक्लूड दैट द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कॉन्फाइंड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम. इंडिकेट a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree. Indicate that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. Clear है? And that small volume is called nucleus. उसी स्मॉल वॉल्यूम को उन्होंने क्या नेम दिया? न्यूक्लियस. क्या बोला कि जो मास है और चार्ज है वो कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर. जो पॉजिटिव चार्ज है और मास है वो क्या है? न्यूक्लियस के अंदर है. क्लियर है? मीन्स दीज 3 आर द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. ओके, अब इस कंक्लूजन के आधार पर उन्होंने कुछ पोस्टुलेट डिसाइड किए फॉर द एटम कि
एटम के बारे में कुछ पोस्टुलेट दिया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो फर्स्ट पोस्टुलेट, द मोस्ट of the mass and all the positive charge of an atom is concentrated in a very small region called nucleus. The positive charge on the nucleus is due to proton. Nucleus पे जो positive charge आ रहा है that is because of proton. The nucleus is surrounded by electron which move around the nucleus with a very high speed in a circular path called orbit. क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर अवेलेबल है और एक ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर मूव कर रहे हैं, मीन्स पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? मीन्स दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो क्या बताया कि सिंस प्रोटॉन इज न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवेलेबल है जो कि उसको बाइंड करके रखा है। द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, सो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बताया, जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है वो दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन आर इक्वल, दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। क्लियर है? तो ये सारे क्या थे, उनके पोस्टुलेट थे। तो ये आपको पोस्टुलेट तो बिल्कुल ही याद रखने हैं। क्लियर है? अब थोड़ा एनसीईआरटी पे आ जाइए। एनसीईआरटी पे क्या देखने हैं, यू कैन सी ओके हियर इज रदरफोर्ड मॉडल। तो आपको एनसीईआरटी से भी पढ़ना है, तो यू हैव टू रीड फ्रॉम हियर। एनसीईआरटी से पढ़ना है। इन्होंने सबसे पहले रीजन बताया क्या क्या हुआ है, अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया। ओके सॉरी, दिस वन शुड बी रिमूव्ड। ओके देन यहाँ पे उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन को बताया। द अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट गिव टोटल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड। ये 3 ऑब्जर्वेशन थे। देखो, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपेयर टू द बॉन्ड, मीन्स सेम पाथ पे रिटर्न आ जा रहे थे। दिस रिजल्ट वाज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर ऑफ 15 इंच सेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक एंड हिट यू। मतलब क्या बता रहे हैं उन्होंने, ये उतना ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थे जैसे आप एक सेल को 15 इंच सेल को आप एक टिश्यू पेपर पे फेंके और वो रिटर्न आपको आकर के लग जाए। टिश्यू पेपर पे आप क्या एज्यूम करेंगे, वो उसको क्रॉस करके जाएगा, पास करके जाएगा, मगर वो रिटर्न आपको लग रहा है। इतना ज़्यादा वो सरप्राइजिंग था उनका रिजल्ट। ओके, तो आपको यहाँ से पढ़ने हैं, बेसिकली आपको यहाँ से पढ़ने हैं, ये सभी चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको ये पढ़ने हैं। ऑब्जर्वेशन एक बार यहाँ पे देखेंगे आप। ओके, दिस ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे देखेंगे। ऑब्जर्वेशन के बाद यहाँ पे कंक्लूजन दे रखा है एंड देन पोस्टुलेट। तो पोस्टुलेट हमने वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बताया है, यू कैन राइट। देन वी विल गो टू द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। तो वी विल लर्न अबाउट द ड्रॉबैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। Along with that, we will learn the Bohr's model because their drawback is connected to Bohr's model. Okay.